Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I welcome you all in our today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the verse of Holy Quran. Hope my voice is clear and screen share with you guys as well. If you have any kind of question or query regarding previous session, you may ask. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. Further, if you have no kind of query or question regarding previous session, so we further proceed over previous session of slide that was protection zones, generator or generator transformer unit in number one of zones. So in this picture, you can see the number of sections in which generating a station, transformer, interconnected bus, which link and create a link between transformer of transmission line further with the line of zone, further the another link of bus which link the secondary transmission line with the distribution end of transformer, and we can say further drive the secondary end of transmission line, and at the end the transformer zone is also linked with the distribution transformer. At the end, the bus of zone further link with the load of utilization. This is the whole procedure from generating station to distribution and utilization of power in different zones with the categorization in six number of units. So we need to start and discuss about the picture. The first location of zone, you can see the unit generator, that is be called a zone TX zone, generator which produce electricity, and further protection equipment it linked with the distribution transformer.
Okay, sorry for the interruption. I was discussed about the protection aspect, which is in between the transformer zone and generating station zone. That is the protection equipment of relay and the equipment of like a circuit protection or a relay which protect the harmful amount of fault that is created in between the transformer or generator of unit. Assalamu alaikum, sir. Okay, sorry for the interruption. I was stop my session at transformer and generating station of zone protection. That is the protection equipment used in between the transformer and generator. And when a fault is produced at the end of transformer and in between generator, the protection equipment would be operated because the fault current is back and forth in between the transformer and generating unit. So we need to prevent it from by the generating protection of unit. These are the two further zones by which protection equipment can be entertained to prevent from a fault to the generator and transformer. Further, the second zone of transformer of zone is linked with the bus of zone, and further a transformer of equipment is linked with the protection relay, and the circle of link you can see in this zone are the circuit breakers, and in between circuit breaker you can see a place of protection relay which is placed here, which is we call a differential relay. Further, after another circuit breaker, a bus of zone protection also placed here, which is bus of zone
also in between the circuit breaker. Further, the topology of circuit breaker is placed in between the devices to prevent a particular power device from a fault current. So further, protection relays and circuit breakers prevent a device from a fault. Okay, after that, here you can see the protection relay also plays here and circuit breaker is provided there. Further, after that, the transmission line, that is in line of zone, is drive in between the starting of bus that is linked with the transformer of protection relay, and at the end the another bus of zone that is drive through the transformer of distribution at the end. The transmission line which is placed here is in a primary power transmission line, that would be ultra high voltage transmission line, extra high voltage transmission line, and normally a high voltage transmission line which is placed here in the circuit of 500 kV or 220 kV. So after that, a protection relay of distance relay, we can say, is placed here with the link of circuit breaker, you can see, and then a bus of zone further drive with the protection zone of line protection, and a transformer zone of the distribution transformer also drive by this link. At the end of this zone, a protection relay also drive by the circuit breakers of bus of zone, and then a motor zone, motor of utilization of load, also plays there as the circuit breaker, and in between the protection relays are drive by the load. So this is the whole network of topology of different category of zone with the protection aspects, and the categorization of that block are particularly drive by the units that are generator or generator transformer unit in number one. Number two is transformer. Number three is buses. Four is lines transmission distribution. And in number five, you can see the utilization requirement, motor, static load, etc. are drive here. And the sixth one is capacitor or reactor when separately protected. So the protection equipment for capacitor reactor also be managed here to prevent a power of device from a harmful amount of short circuit, even a dead short circuit. Up till now, if any kind of question and difficulty is in your mind, please feel free to ask. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. Yes, my friend. I think all the things are clear and have no kind of question. But if you have kind of query, please feel free to discuss. I will answer your question and resolve your queries. Am I hearable and my screen is shared with you guys? Can anybody confirm me? Yes, sir. Are you there, my friend? यस सर, आपकी आवाज भी ठीक आ रही है और स्क्रीन भी शेयर्ड है. Am I hearable? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी सर. सर आपको आवाज आ रही है? यस सर, हो रही है.
Okay, everything is fine. So we're moving towards. Okay, I am hearable and my screen appear on your screen as well. So we're moving सर towards आपकी the हमारी next आवाज आ रही है? session after protection zones. So protection zone have been and here and further the description about the aspect discussed already in the mentioned slide. So further moving towards the next aspect of zone protection, that is here the component zone protection, that is a generating station. Further a generator produce 20 kV and after the 110% of सर आपको आवाज आ रही है? हेलो सर. oh, I'm sorry, my speaker is turned off, so it's a fault from my side. Sharus, can you please speak? जी सर. सर अब आ रही है आवाज? Gigi, I'm here. Yes, I can listen to you. But sorry from my side, my speaker No is problem off sir. No. and I'm not. Okay, continue further the session about the aspect that we already. Okay. So I was talking about the generating station operating voltage that would the rating level 20 kV. The 20 kV operating voltage. After that, the 110% of 20 would be to 22 kV because the generating station operating voltage that would be 11 kV, 22 kV. And for the sake of that purpose, why it's 20 to become 22 kV because we for operating purpose and other kind of aspect we need to normalize that 20 kV into 110% of that operating voltage, that would be 22 kV. For the sake of getting the value of 110% of 20, now it will become 22 kV for line losses, for devices losses and other kind of voltage regulation, voltage drop. So we need to normalize the kind of voltage at the level of 22 kV. So a transformer is connected here and then a bus is connected at this stage. Further protection equipment, that is transformer, or that is a circuit breaker also connected there. Further a line of transmission line also connected there, that is the 230 kV. Normally the transmission line, the grid operating at our country wise is 16 circuits of grid 500 kV of transmission line and 46 circuit of grid of 220 kV in our country as a grid of transmission line. मेरी आवाज नहीं आ रही. अच्छा जी, तो मेरी आवाज अब आ रही है? बीच में नेटवर्क का इशू हो गया था. एम आई हेरेबल? कैन एनीबडी कंफर्म मी? जी सर. Yes, बीच में sir. ब्रेक हो गई. अब आ रही है. जी जी, बीच में असल में वो नेटवर्क का इशू शायद हो जाता है. आप मुझे जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं फिर रिपीट कर दूं. ओके. फर्दर अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 230 kV. अच्छा, ये चीज मुख्तलिफ हो सकती है मुख्तलिफ कंट्री वाइज, सिस्टम वाइज, नेटवर्क वाइज, नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेजेस. बट मैं साथ साथ अपने कंट्री के लिहाज से, रीजन के लिहाज से जो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस चल रहे हैं वो भी आपको साथ साथ आगाह करता हूँ. जिस तरीके से 20 kV यहाँ लिखा हुआ है लेकिन हम 11 kV लेते हैं या 22 kV लेते हैं. शादर और नादर कोई 22 kV है, नहीं तो सारे जनरेटिंग स्टेशन के ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो हमारे 11 kV हैं. साथ ही साथ ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क के वोल्टेजेस मैंने बताया जो ग्रिड के होते हैं, जो ट्रांसमिशन ग्रिड होते हैं वो हमारे पास 46 सर्किट है 220 kV के, जो कि एज अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ ग्रिड नेटवर्क नेशनल ग्रिड में है और 16 सर्किट नेशनल ग्रिड
500 kV के हैं जो कि पाकिस्तान में लाई करते हैं. Further, distance relay is used in between for that purpose of protection, and further a bus is also connected to drive some kind of industrial loads by the transmission line. Further, another link of topology also drive by a transformer with the category of circuit breaker, that is 12 kV at step down by the transformer, and further a residential zone of feeder also drive by the this, and commercial and residential load of feeder can be utilized by this network of zone. So in this component of zone, different kind of aspects also used as a generators, transformers, buses, transmission line, the things we already discussed in this network of topology, but in numbering side I also discussing with you guys. After buses, the transmission line is connected there, a network of load, and further a motor is connected at the end side in this aspect of load. Further, capacitor banks are also connected and reactors. So this is the whole all about the component of zone protection. Okay, further, the symbol which are used for the topology of zone are mentioned here. A two-winding transformer, a primary or secondary side. Two-winding transformer, another aspect of zone. So why the two symbols? Because of IEC standards and DS, British standard. So that's the way we are representing a transformer into a two symbols, because of standardization of symbol. Generator, bus of connection, transmission line, delta connection of your transformer, and Y connection of your transformer. In most of the diagram, like ETAP simulation, MATLAB simulation, and a single line diagrams, which is you very well know, guys, and about the single line diagram and the symmetry which is follow in our single line diagrams, which consultant, contractors, site engineers follow in their respective inline projects. Further, the static load which is driven by the end of single line diagram are mentioned by the symbol. Further, the current transformer also mentioned in the aspect. This symbol we also सर स्टैटिक लोड कौन से होते हैं? स्टैटिक लोड वो होते हैं जो हरकत नहीं करते, जैसे कि आपके लाइटें हो गई, ट्यूब लाइट्स और सेवर, एनर्जी सेवर, एलईडीज, ये वो लोड होते हैं जो डायनामिक नहीं होते, रोटेट नहीं करते. तो दो तरह के लोड होते हैं, स्टैटिक लोड्स और डायनामिक लोड. डायनामिक लोड्स वो लोड्स होते हैं जो रोटेटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे फैंस हो गए और हमारे कंप्रेसर्स हो गए और इंडक्शन मोटर्स हो गई. ये हमारे डायनामिक लोड्स होते हैं. और स्टैटिक लोड वो लोड होते हैं जो मूव नहीं करते, जस्ट स्टैटिक रहते हुए इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारी एलईडीज हो गए, एनर्जी सेवर हो गए, इनग्रेसेंट बल्ब हो गए, ट्यूब लाइट्स हो गई. तो ये फर्क है स्टैटिक लोड और डायनामिक लोड का. डायनामिक मेंशन नहीं है, बट मैंने वो भी अलग से बता दिया. फर्दर मैं I will discuss with you guys that the current transformer, instrument transformers are in two types. Number one is CT and number two is PTs, potential transformers. So CTs are represented by the symbol of this way, in which you can see a CT of two sensing drives are used. In PTs, you can see a potential transformer is connected there. A capacitor, which is shown in this symbol. In single line diagrams and different kind of simulation diagrams, you can already very well know to show the kind of symbols. Circuit breaker can be shown the symbols, and circuit breaker can also be shown in these symbols. Why the two symbols are used? Because of the standardization and follow the making of drawings. बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट जो है, कंपनीज बहुत सारी होती हैं, तो अपने हिसाब से सिंबल्स और सर्किट ब्रेकर्स को फॉलो करते हैं. और कंपनी जो स्टैंडर्डाइजेशन की होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैंडर्डाइजेशन का नंबर अलॉट करती हैं, उनके मुताबिक भी सिंबल ड्राइव किए जाते हैं. इसीलिए आपको एक सर्किट ब्रेकर के बहुत सारे सिंबल मिलेंगे. फर्दर अगर हम फ्यूज की बात करें तो फ्यूज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल in this way. Surge arrestor, lightning arrestor have their own symbols like this one, and disconnect switches.
which is also shown as normally open. I think the symbolic representation of protection equipment have been clear in your mind. So if you have the kind of question, please discuss. Otherwise, I'm moving towards the next aspect, which is the primary equipment and components. So primary means in a starting aspect, and शुरू के जो upstreaming की diagrams में आप देखें तो जो power components होते हैं that are also called a primary equipment and components, which are called transformers to step up or step down voltage level, breakers to energize equipment and interrupt fault current to isolate faulted equipment. Isolators are to insulate equipment from ground and other phases. Isolators as a switch if it's operate for switching purpose on and off, and also for tripping purpose, to create a visible and permanent isolation of primary equipment for maintenance purposes and road power flow over certain buses. So it is also be used there for the equipment maintenance purpose and the road power flow in the specified overflow certain buses. So if you're talking about the bus to allow multiple connections, feeders to the same source of power transformer, so a bus can be connected there. After that, further the primary equipments are grounding purpose to operate and maintain equipment by the for the safety purpose and procedure. So we need to use ground to prevent a power equipment by the fault current, short circuit and short circuit scenarios of conditions. Arresters can be categorized into two aspects, that is surge arresters and lightning arresters. So mostly the arrestor term can be linked or used for lightning strike of arresters, but surge arrestor also be there. The category of surge arrestor about the equipment, the surge arrestor is need to use. Can anybody tell me why the surge is produced in a system? Where it comes from? Where the surge comes in the system? Can you explain? सर हाई वोल्टेज की वजह से होता है सर. यस यू आर राइट कि हाई वोल्टेज की वजह से होता है, लेकिन सर्ज सिस्टम में आता कैसे है? मतलब हाई वोल्टेज क्यों हो जाते हैं एकदम? मतलब कंडीशंस क्या हो सकती हैं आपके मुताबिक? सर ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक है शायद इसी वजह से, अगर नेचुरली देखा जाए तो. नहीं देखें, अरेस्टेड दो टाइप के होते हैं, लाइटिंग अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर. इन दोनों के कंडीशन सिनेरियोज अलग अलग तरह के होते हैं. तो ये चीज ध्यान में रखें कि लाइटनिंग अरेस्टर का सर्ज अरेस्टर से डायरेक्टली लिंक नहीं है, और ये दोनों डिवाइस एक दूसरे के इंटरचेंजेबल भी नहीं है कि भाई सर्ज अरेस्टर में लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर में सर्ज अरेस्टर लगाते हैं. दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. तो सर्ज अरेस्टर जो लगाए जाते हैं वो उस मकसद के लिए लगाए जाते हैं. बाज दफ़ा सिस्टम जो एक दूसरे से स्विच किए जाते हैं, ख़ास तौर पे ग्रिड में, जो मुख्तलिफ तरह के ग्रिड में जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम लगे हुए होते हैं, इंटरलिंक सिस्टम लगे हुए होते हैं, वो बाज़ औक़ात स्विच करते हैं ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन. और हमारे वो सिस्टम जो कि टैपिंग्स के पावर ट्रांसफार्मर के अंदर जो टैपिंग्स आपकी होती हैं, खासतौर पे ऑन लोड टैप चेंजिंग, तो ऑन लोड टैप चेंजिंग के नतीजे में सिस्टम में सर्जेस आ जाते हैं. एकदम से वोल्टेज स्पाइक के नतीजे में बहुत ज़्यादा वोल्टेज हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं. और जब सिस्टम में बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस आ जाते हैं तो इसके नतीजे में होता यह है कि आपके सिस्टम में एबनॉर्मलिटी, अनस्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट बहुत देर तक सस्टेनेबल कंडीशन में रहता है, बहुत देर तक ट्रांजिएंट रहता है, और सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं रहती, जिसके नतीजे में आपके बहुत सारे डिवाइसेस, अप्लायंसेस जो कि आपके सिस्टम से ड्राइव हुए होते हैं, वो इस सर्ज के नतीजे में, यानी हाई वोल्टेज के नतीजे में
वो बर्न आउट हो जाते हैं, फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो बहुत बार जावा सिस्टम्स एक दूसरे से जो इंटरकनेक्ट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उनके नतीजे में सड़ जाता है। एकदम कनेक्ट होते हैं, उसके नतीजे में सड़ जाता है। पावर ट्रांसफार्मर के नतीजे में जो ये कंडीशन से बता रहा हूँ, जो आपके टैपिंग्स ऑन लोड के ऊपर लगती हैं उसके नतीजे में सर्जेस आते हैं। और इसके नतीजे में साथ ही साथ हमारे वो एस्पेक्ट जिसमें आपके बहुत ज़्यादा जो इंटरलिंक सिस्टम होते हैं उनमें सिंक्रोनाइजेशन बाज़ औक़ात नहीं हो पाती, उनके वोल्टेजेस नहीं मिल पाते, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती, उनका फेज सीक्वेंस मैच नहीं हो पाता। उनमें जो फेज डिफरेंस जो 120 डिग्री अपार्ट विच रेड येलो ब्लू होता है एक से दूसरे तीसरे के नतीजे में 120, 240 और फिर 0 दर्जे के जावियों के मुताबिक, तो ये तीनों फेजेस जब नहीं मिल पाते तो उसके नतीजे में सिस्टम में बैक सर्ज आता है जो कि लोड साइड पे चला जाता है। तो फिर इसको अगर प्रिवेंट ना किया जाए तो आपका सिस्टम के बहुत सारे सिस्टम में जो लोड यूटिलाइज हो रहे हैं वो खराब हो जाते हैं। और ये सिस्टम ऑफ सर्ज जो प्रोड्यूस होता है सिस्टम्स में सिर्फ जनरेटिंग स्टेशन में नहीं बल्कि ट्रांसमिशन में भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर भी होता है बाज़ दफा। तो अगर आप इक्विपमेंट सही तरह यूज नहीं करें, उनको डील सही तरह नहीं करें, उनमें प्रोटेक्शन की टोपोलॉजी, प्रोटेक्शन नेटवर्क को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करें, तो उसके नतीजे में जो सर्ज का इम्पैक्ट है वो आपके लोड के एंड तक भी आ जाता है और फिर उसका इम्पैक्ट आपने देखा भी होगा। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए सर्ज अरेस्टर्स लगाए जाते हैं। तो सर्ज अरेस्टर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह के होते हैं ताकि इससे आपको आइडिया हो। मैंने तो देखा हुआ है। तो ये इस तरह के सर्ज अरेस्टर्स होते हैं, अगर आप इसे गौर करें। एक इसका ऊपर से पावर, अच्छा ये तीनों ऐसी डिवाइस नहीं होती कि मतलब तीनों फेज में लग जाए, ये पर फेज डिवाइस आती है, यानी रेड फेज यहाँ से इन करेंगे और यहाँ से रेड फेज फर्दर आप ड्राइव कर लेंगे और सेंसिंग के लिए आप यहाँ पे ले लेते हैं। तो रेड फेज यहाँ लिंक करते हैं और यहाँ से आप हासिल कर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो बल्कि सॉरी यहाँ से ड्राइव करते हैं। तो ये सर्ज अरेस्टर के पर्पज से इस्तेमाल होते हैं और ये बड़े कुछ 12-12 फीट 15 फीट के होते हैं ये ऊंचाई के लिहाज से। इनके अंदर काउंटर्स भी लगे हुए होते हैं। तो ये HT साइट के सर्ज अरेस्टर्स हैं। मैंने काम किया है LT साइट के सर्ज अरेस्टर्स पे। तो ये इनकी एंड फिटिंग होती है जो एंड टू एंड होती है, रैपिंग हुई भी होती है इनमें, मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर लगे हुए होते हैं, सिलिकॉन रबर शीट लगी हुई होती है ताकि प्रिवेंट कर सके शॉक को, इंसुलेटिंग ब्रैकेट्स लगे हुए होते हैं ताकि ये फिक्सिंग पर्पस के लिए लगाए जा सकें, और आखिर में इसका डिस्कनेक्ट स्विच लगा हुआ होता है, डिस्कनेक्टर। और फर्दर यहाँ से आप फेस को ड्राइव करते हैं यहाँ से इन करके। तो ये HT का पर फेज सर्ज अरेस्टर कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? अब इसकी कैटेगराइजेशन पे अगर हम बात करें तो थोड़ी क्लियर नहीं है पिक्चर, आई थिंक वहां से हो गई होगी। 0.75 केवी यानी कि 700 केवी तक का सर्ज अरेस्टर, फिर 3 केवी का सर्ज अरेस्टर, 9 केवी का सर्ज अरेस्टर, 15 केवी सर्ज अरेस्टर, 60 केवी सर्ज अरेस्टर, 150 केवी सर्ज अरेस्टर, और फिर इसके अंदर ये हॉलो टाइप का ये एक अम्ब्रेला टाइप का शेप होता है 150 केवी में, 210 केवी का सर्ज अरेस्टर फर्दर, 330 केवी सर्ज अरेस्टर एंड 624 केवी सर्ज अरेस्टर मोस्टली हमारे HT सिस्टम में और ग्रिड्स में सबस्टेशन में इस्तेमाल होता भी है। फर्दर आपका 800 केवी का सर्ज अरेस्टर ये कहलाता है जो कि मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, LT में LV में जो सर्ज अरेस्टर इस्तेमाल होता है वो ये होता है, ये सिंगल फेस का सर्ज अरेस्टर है, अपने घर में भी लगा सकते हैं आप सर्जेस की प्रिवेंशन के लिए। लेकिन के इलेक्ट्रिक या यूटिलिटीज जो आपकी बहुत अच्छा काम कर रही है उन्होंने काफी हद तक अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लिया, तो अमूमन अब सर्ज इतना ज्यादा सिस्टम में नहीं आ रहा जिसके नतीजे में आपका सिस्टम डैमेज नहीं होता सर्ज में। ये सिंगल फेस का सर्ज अरेस्टर है, आप यहाँ पे लगाते हैं रेड फेज, न्यूट्रल, जिससे भी आप सिंगल फेस की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट करते हैं लाके, और जस्ट इसलिए लगा देते हैं मेन DB में आप, और बाकी घर का लोड चलता हो। इसको सीरीज में नहीं, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे आपके घर में
मीटर से निकल के डायरेक्ट घर में लोड यूटिलाइज हो रहा होता है सर्किट ब्रेकर के जरिए, तो सर्किट ब्रेकर के साथ तारे जंप करके आपने अपने उस सर्किट ब्रेकर से एक फेज रेड यहाँ लगाना है और न्यूट्रल यहाँ लगा देना है और ग्राउंड यहाँ लगा देना है। ग्राउंड घर में ग्राउंड अगर नहीं बना तो घर में ग्राउंड बनवा कर, वो तरीका ग्राउंड का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आपको पता भी होगा। उसका जो केबल होती है ग्राउंड की लाके यहाँ कनेक्ट कर देंगे और ये फिर आपके सर्ज अगर सिस्टम में आते हैं तो उससे प्रिवेंट कर जाएगा और आपके सिस्टम को सर्ज के नतीजे में खराब होने से बचा लेगा। दूसरी बात, ये जो ग्रीन कलर का वो लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक्टिव है। अगर सर्च यहाँ पे आता है, ये इसका फ्यूज कहलाता है, ये इसका लिंक है और इसमें ये फ्यूज लगता है इसका। तो ये जो फ्यूज आप देख रहे हैं ना इसमें, तो ये ग्रीन का मतलब ये ऑपरेशन कंडीशन में है। लेकिन अगर इसमें सर्च आ गया, सर्च के नतीजे में इसका फ्यूज बाजू का तोड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर ये ग्रीन की जगह रेड हो जाता है, तो इसकी निशानी होती है। ठीक, तो मैंने इस पे काम किया, लेकिन ये सिंगल फेस है, मैंने 3 फेस पे काम किया, तो उसके मुताबिक होते हैं। हम रेड कलर के ऊपर के हिसाब से काम करते हैं और ये तकरीबन, हाँ ये भी एक ब्रांड है। तो इसमें इस तरीके से लाइन को कनेक्ट किया जाता है, ये भी एक सर्च के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये डीसी का सर्च रजिस्टर है, पॉजिटिव लाइन, नेगेटिव लाइन और ग्राउंड कनेक्ट करते हैं आप यहाँ पे, और ये उसके लिंक्स कनेक्ट कर देते हैं, जिसके नतीजे में प्रिवेंशन हो जाती है सर्च की। तो डीसी के अंदर भी सर्जेस आते हैं सिस्टम में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में और ओवर वोल्टेज के नतीजे में, तो उसको प्रिवेंट कर जाता है, ये सिस्टम को बचा लेता है। और जब इसके अंदर सर्ज करंट गुजर जाता है, सर्ज वोल्टेज गुजर जाते हैं, तो फिर ये ग्रीन से रेड हो जाता है। इसका मतलब आपको ये चेंज करना होता है। इसको बकायदा निकालने के लिए इसका स्पेसिफिक क्लास आता है, आप हाथ से नहीं निकाल सकते, इसको बड़ी ताकत चाहिए सिर्फ ये इसके जैक में से निकालने के लिए। अच्छा जी, फर्दर हाँ मैं दिखा रहा था श्नाइडर का, आपका ये आ गया भाई 3 फेज का एक सर्ज अरेस्टर। तो इसमें आप L1, सर L2, सर L3 चाहिए यूज कर आउटपुट पे लगता है इनपुट पे लगता है? इनपुट पे। इसको लगाने का तरीका मैं अभी बताया था, दोबारा बता देता हूँ मैं। देखिए, आपकी मेन डीबी होती है ना, उसमें सर्किट ब्रेकर एक लगाते हैं। जब के इलेक्ट्रिक का एक मीटर होता है, यूटिलिटी का एक मीटर होता है, मीटर के बाद आपके घर में तारे आती हैं जिससे आप घर का लोड चलाते हैं। तो सेफ्टी पर्पस के लिए आपको पता है कि आप सर्किट ब्रेकर लगाते हैं ना वहाँ पे। तो सर्किट ब्रेकर अगर 3 फेज घर में आ रहा है तो 3 फेज की तारे सर्किट ब्रेकर में लगेंगी। ठीक, और सर्किट ब्रेकर से वही पैरेलल तारे उठा के आप इसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, बाकी वो जो आपका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ था उससे तारे तो ड्राइव हुई भी होंगी, उससे तारे ड्राइव हुई भी होंगी। आप सर्किट ब्रेकर के अंदर इनकमिंग आएगी, आउटगोइंग से अपने घर को चला लेंगे। उसी की इनकमिंग के ऊपर, ठीक है, इनकमिंग के ऊपर रखते हुए आप यहाँ पे पैरेलल में तारे इस तरह इंसर्ट करेंगे, न्यूट्रल L1, L2, L3 और ग्राउंड। सिंगल फेस के लिए सिंगल फेस, 3 फेस के लिए 3 फेस। ये मैंने सिंगल फेस का बता दिया था और 3 फेस का ये बता दिया। जैसे ये 2 पोल है, 40 एम्पेयर के सर्जिस को बर्दाश्त कर सकता है। 40 एम्पेयर का अगर सर्ज आ जाए तब तक ये बर्दाश्त कर सकता है। 40 किलो एम्पेयर, सॉरी 40 का मतलब 40 किलो एम्पेयर। तो इसके हिसाब से ये चीज डील हो जाती है। तो ये भी एक 3 फेस का सर्ज रजिस्टर है जो कि 4 पोल है। तो डबल पोल सिंगल फेस में आता है और 4 पोल 3 फेस में आता है। बाकी HT के मैंने सर्ज रजिस्टर्स आपको ये बता दिए जो कि पर फेस के हिसाब से लगते हैं। सब स्टेशन, ग्रिड स्टेशन मैंने लकी सीमेंट में लगे हुए देखे थे, लकी सीमेंट में मैंने ये वाले लगे हुए देखे थे, ये वाले जो 240 kV है, ये मैंने 220 kV पे लकी सीमेंट में ये वाले और ये वाले लगे हुए देखे हैं, पर फेस पे लगते हैं। सर्ज अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर, सिटीज पीटीज, पूरा बेहतरीन सब स्टेशन बना हुआ है लकी सीमेंट वालों का। इसी तरीके से ये भी 4 पोल है। ये इंडिकेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये इसमें इनसाइड होता है वो ना, नजर आ जाता है ऑपरेट करने वाले को। तो अगर ये रेड हो जाए तो इसका मतलब इसको रिप्लेस करना है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि रेड इक्वल टू रिप्लेस करना है आपने, और ग्रीन हो तो चल सकता है, ये ऑपरेटेबल है। तो इस तरह इंडिकेशन के तौर पे आप इसको चलाते हैं और कनेक्ट करते हैं। तो ये लिंक्स होते हैं और ये उसमें उसके फ्यूजेस होते हैं जो लगते हैं, तो ये रिप्लेस करने होते हैं। जैसे ही सर्ज आ जाए फिर आपको ये रिप्लेस करना होता है, और फिर ये काम नहीं करता अगर ये रेड हो जाए तो। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल किसी के ध्यान में? सर्ज रजिस्टर मैंने बता दिया क्या होता है, किस तरह आप कनेक्ट करते हैं इनकमिंग पे और फर्दर
ये ड्राइव होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड के मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन कनेक्शन टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सेम ही होती है इन सब की। ठीक है जी, होपफुली कोई सवाल नहीं है आप लोगों का। हम फर्दर यहाँ से मूव करते हैं दोबारा से अपने प्राइमरी इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट्स की तरफ। तो हम बात कर रहे थे सर्ज अरेस्टर, इसी तरह लाइटिंग अरेस्टर्स भी होते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक जब करती है, आसमानी बिजली जब आपकी स्ट्राइक करती है, तो उसके नतीजे में लाइटिंग अरेस्टर्स काम करते हैं। वो भी मैं दिखाई देता हूँ साथ साथ। लकी सीमेंट के अंदर लाइटिंग अरेस्टर्स भी लगे हुए थे। वो लाइटिंग अरेस्टर्स कैसे होते हैं? ये इस तरह के होते हैं लाइटिंग अरेस्टर्स, जो कि पर फेस पे लगते हैं। ये इस तरह होते हैं, पर फेस लगते हैं। अमूमन लाइटिंग जो होती है वो ट्रांसफार्मर भी स्ट्राइक करती है, क्योंकि वो डार्क कलर का होता है। तो लाइटिंग 4 पोल का मतलब ये उसके ऊपर लगा हुआ होता है, पोल के हिसाब से लाइटिंग अरेस्टर्स जो आपके होते हैं। मेरे को स्पेसिफाइड पिक्चर दिख रहा है ताकि आपको दिखा दूं लाइटिंग अरेस्टर्स के लिहाज से, ताकि उस पर हम फिर डिस्कस कर लें। अमूमन पोल पे आपने ऐसे भी लगे हुए देखे होंगे, ये लाइटिंग अरेस्टर्स इस तरह के होते हैं। ये ऊपर होते हैं, जब इस पे ये लाइटिंग स्ट्राइक करती है तो उसके नतीजे में यहाँ से होते हुए ट्रांसफार्मर को प्रिवेंट करती है और यहाँ से इसे ग्राउंडिंग में एब्जॉर्ब कर देती है जमीन में। तो ये इस तरीके से भी काम करता है। शुरू में एक अच्छी पिक्चर थी, उस पर टाइप्स पे बात कर लेते हैं कि किस तरह के नजर आते हैं। तो ये इस तरह के लाइटिंग अरेस्टर्स होते हैं, इस तरह भी होते हैं समथिंग। ये बड़े केवी में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये कम केवी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूमन जो है ये हाई पोटेंशियल ऑफ दी हाइट पे लगाए जाते हैं ताकि इससे प्रिवेंशन हो सके। और लगी सीमेंट में ये सीटीज पीटीज सर्ज अरेस्टर लाइटिंग अरेस्टर लगे हुए भी थे। तो disappear across the transformer, discharge voltage across the arrestor। अच्छा, ये अरेस्टर है, वो लाइटनिंग अरेस्टर ये होता है। अच्छा, इसके नीचे काउंटर भी लगा हुआ होता है यहाँ पे ना, कितनी मरतबा आसमानी बिजली इसके ऊपर टकराई है। जैसे यहाँ पे अगर आसमानी बिजली गिर जाए तो कहीं पे भी जाने नहीं देती वो उसके सिग्नल को, आसमानी बिजली के हाई वोल्टेजेस को, बल्कि अपने अंदर एब्जॉर्ब करके काउंटर से होती हुई उसे जेर जमीन एब्जॉर्ब करवा देती है। और इस तरीके से काम करता है ये आपका लाइटनिंग अरेस्टर। क्लियर है यहाँ तक जनाब? ये सर्ज अरेस्टर लाइटिंग अरेस्टर हमने डिस्कस कर लिया है। उधर इक्विपमेंट से बात करते हैं। स्विच गेट्स आपके होते हैं इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे से लिंक करते हैं। इसके अंदर पैकेज होता है पूरे प्रोटेक्शन रिलेज का, कॉन्टेक्टर, स्विच बटन्स, सर्किट ब्रेकर्स, कॉन्टेक्टर्स, प्रोटेक्शन रिले, इन सब के कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस के नेटवर्क को स्विच गियर कहा जाता है। स्विच गियर की टर्म इस्तेमाल होती है आपके एलटी के नेटवर्क में, ठीक है, लो टेंशन लो वोल्टेज नेटवर्क ऑफ जो होते हैं उनमें आपकी टर्म इस्तेमाल होती है स्विच गियर। एचटी या हाई वोल्टेज एचवीएसी एमवी के अंदर जो टर्म इस्तेमाल होती है वो स्विच गियर नहीं होती बल्कि स्विच यार्ड होती है, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। तो स्विच इसमें होते हैं, प्रोटेक्ट इक्विपमेंट होते हैं, मीटर्स होते हैं, कंट्रोल पावर फ्लो को करने के लिए हमें रिलेस लगाई जाती हैं। रिएक्टर्स की फर्दर अगर हम बात करें तो रिएक्टर्स जो आपके होते हैं इनके अंदर आपके टू लिमिट दी फॉल्ट करंट सीरीज में आपके रिएक्टर्स लगाए जाते हैं रिक्लोजर्स के तौर पे, और कंपनसेट फॉर चार्ज करंट शंट को कंपनसेट करते हैं। अगर हम वीटी एंड सीटी की बात करें जो कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स आपके होते हैं, ये सेंसिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो करंट और वोल्टेज को सेंस करते हैं, ठीक है। तो आपके सब स्टेशन के अंदर जिस तरह सर्ज अरेस्टर लाइटनिंग अरेस्टर्स लगते हैं, तो इन्हीं के साथ साथ आपके सीटीज पीटीज पर फेज में भी लगाए जाते हैं जो करंट और वोल्टेज को सेंस करते हैं। टू मेजर द प्राइमरी करंट एंड वोल्टेज एंड सप्लाई स्केल्ड डाउन वैल्यूज टू पोटेंशियल एंड करंट मीटरिंग स्काडा, इन सिस्टम के लिए जो मॉनिटरिंग सिस्टम आपके होते हैं उनकी सेंसिंग के लिए ये सीडी पीटीज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें तो इनमें वोल्टेज करंट VAR जो वोल्टेज ऑटोमेटिक रेगुलेटर्स होते हैं, सॉरी VAR आपके वोल्टेज एम्पेयर रिएक्टिव पावर होती है, VR पावर जो होती है ना KVR वो वाली पावर है, सॉरी। इनको रेगुलेट करने के लिए इनके रेगुलेटर्स आते हैं। PR स्टैटिक कंपनसेटर्स होते हैं और फेज एंगल के कंपनसेटर्स होते हैं कि जो फेज एंगल को रेगुलेट करते हैं और कंपनसेट करते हैं ताकि सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, एक्सेट्रा वगैरह। अच्छा जी, सेशन को
यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, कोई फर्दर सवाल आपके जहन में हो तो डिस्कस कर लीजिए। फर्दर हम डिवाइसेस नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि सिस्टम और डिवाइसेस जो होते हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। जैसे टाइम डिलेज होते हैं, डिस्टेंस रिलेज के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। सिंक्रोनिज्म चेकर, एक सिंक्रोनोस्कोप मीटर होता है जो सिंक्रोनिज्म को चेक करता है, सिंक्रोनाइजेशन हुई या नहीं उसका स्टेटस भी बताता है। अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज के इंडिकेशंस के ऊपर भी हम रिलेज लगाते हैं। एक्चुएटर्स होते हैं जो सिस्टम को इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल वेज में डील करते हैं, वो सिस्टम्स आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें रिलेस मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल स्विच कहलाते हैं। और डायरेक्शनल पावर फ्लो के, वो पावर की जो फ्लो है वो सिंकिंग पावर है या सोर्सिंग पावर है, रिएक्टिव पावर है या रियल पावर है, तो ये डायरेक्शनल पावर फ्लो मीटर्स आपको वो बताते हैं। अंडर करंट एंड अंडर पावर जो इंडिकेशंस ऑफ मीटर होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बेयरिंग मैकेनिकल एक कंपोनेंट है। फील्ड ऑफ योर करंट ऑफ वोल्टेज ये भी इस्तेमाल की जाती है। रिवर्स फेज, रिवर्स पावर, इन सब की सेंसिंग के मीटर्स और उनके मैकेनिज्म ऑफ रिले होते हैं। फेज सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज, थर्मल इंस्टेंटेनियस ओवर करंट, एसी टाइम ओवर करंट, ये रिलीज होती हैं। हमने ओवर करंट टाइम रिलीज भी डिस्कस की है। इसकी 4 कैटेगरी ऑफ रिलीज ओवर करंट रिलीज कहलाती है। ओवर वोल्टेज, वोल्टेज बैलेंस, प्रेशर, ऑपरेटर्स ग्राउंड, एसी डायरेक्शनल ओवर करंट, ब्लॉकिंग, परमिसिव, अलार्म, डीसी ओवर वोल्ट ओवर करंट, आउट ऑफ स्टेप, एसी रिक्लोजिंग। फ्रीक्वेंसी सेंसिंग के लिए उसके मीटर्स होते हैं कि फ्रीक्वेंसी इस वक्त क्या चल रही है। पावर फैक्टर की मेजरमेंट के लिए भी लीडिंग पावर है, लैगिंग पावर है, यूनिटी पावर है, उनकी भी सेंसिंग की जाती है। कैरियर और पायलट वायर्स आपके होते हैं। पायलट वायर आपकी फॉल्ट करंट या फॉल्ट को सेंसिंग के लिए लगाए जाते हैं। पायलट वायर्स सके और खास तौर पे उससे ग्राउंडिंग और सेंसिंग पर्पस ली जाती हैं। इनको कैरियर भी कहते हैं और पायलट वायर भी कहते हैं। लॉकआउट, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिलेज आपकी होती है जो डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर्स में इस्तेमाल की जाती है, सॉरी पावर ट्रांसफार्मर में डिफरेंशियल इस्तेमाल की जाती है, और यहाँ पे ट्रिपिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक हमारा सेशन हम एंड करते हैं। बाकी आज मगरिब के बाद हम सेशन इंशाल्लाह दोबारा कंडक्ट करेंगे, तो अगर आप लोग अवेलेबल हुए तो सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्ड देख लीजिएगा। हम मगरिब के बाद फिर दोबारा सेशन को कंडक्ट करेंगे। तो आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। कोई डिफिकल्टी, कोई सवाल आपके जहन में हो तो यू मे आस्क, आई विल आंसर द काइंड ऑफ क्वेश्चन and resolve your queries if you have in your mind. Please feel free to ask. So session का टाइम क्या था?